بھارت جنگی جنون میں ہوش کھو بیٹھا، لائن آف کنٹرول پر وادی نیلم میں کلسٹر ٹوائے بم سے حملہ، 4 سالہ بچے سمیت 2 شہری شہید، 11 زخمی ہو گئے۔ کلسٹر بم کا استعمال عالمی قوانین اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے رواں سال اب تک 1824 بار سیز فائر معاہدے کو توڑا، جس میں 17 افراد شہید اور 105 زخمی ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی ہتھیار کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے عزم کو دبا نہیں سکتا۔ کشمیر ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ترجمان پاک فوج کا واضح پیغام۔ کہا انشاءاللہ بہادر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی ضرور کامیاب ہوگی۔ میجر جنرل آصف غفور کی بھارتی جارحیت کی مذمت، عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ہندوستان نے کلسٹر بمز کا حملہ کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ امن کی کسی کوشش کو مانتا نہیں ہے، اور امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مودی سرکار کا مائنڈ سیٹ ہے، اور ہندوستان کشمیریوں کے دلوں میں اپنا مقدمہ ہار چکا ہے۔ بھارت کشمیر کا مقدمہ ہار چکا ہے۔ امن میں سب سے بڑی رکاوٹ مودی سرکار کا مائنڈ سیٹ ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کا عالمی برادری سے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بھی مذمت، کہا ٹرمپ کے ثالثی کے بیان کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ بھارت کوئی ڈرامہ اسٹیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ سے بھارت کے خلاف متفقہ طور پر مذمتی قرارداد پاس کرانے کا مطالبہ۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کی تلاش میں ہے، کوئی نہ کوئی ڈرامہ سٹیج کرنے کی تلاش میں ہے۔ ڈپلومیٹکلی وہ اپنے آپ کو خاصا اس وقت وہ دقت میں محسوس کر رہی ہے۔ کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی جانب سے کلسٹر بم گرانے کا معاملہ، دفتر خارجہ میں امریکہ، روس، چین، فرانس اور برطانیہ کے سفیروں کو بریفنگ دی گئی۔ سیکریٹری خارجہ سہیل محمود نے سفراء کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی کہتی ہیں، بھارت اقوام متحدہ کے خصوصی مشن کو مقبوضہ کشمیر جانے سے کیوں روکتا ہے؟ بھارت کچھ بھی کر لے، حقیقت کو چھپا نہیں سکتا۔ بھارتی فوج کی جارحیت پر سیاسی قیادت یک زبان، بلاول بھٹو کا اظہار تشویش، کہا مقبوضہ کشمیر میں کہیں فلسطین والی صورتحال نہ ہو جائے۔ شہباز شریف نے معاملے پر ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ سابق صدر آصف زرداری کی بھی بھارتی جارحیت کی مذمت، شہداء کے خاندانوں سے اظہار تعزیت، زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا۔ پاکستان نے ہمیشہ بھارت سے دوستی کی بات کی، لیکن بھارت ہر اچھی بات کا جواب غرور اور تکبر سے دیتا ہے۔ رہنما نون لیگ عظمیٰ بخاری کی آج نیوز کے پروگرام جی فور غریدہ میں گفتگو۔ رہنما پی ٹی آئی ملیکہ بخاری نے کہا، بھارت کے معاملے پر تمام جماعتیں ایک صفحے پر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ نہ تھم سکا، قابض فوج کی ضلع شوپیاں اور بارامولہ میں کارروائی، فائرنگ سے 2 شہری شہید ہو گئے۔ مشال ملک کہتی ہیں، کشمیر میں بھارتی مظالم سے جدوجہد آزادی میں کمی نہیں آ سکتی، معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھانے کی اپیل۔ جس سینیٹر نے مجھے اپروچ کیا انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا نام لیا، اور جس سینیٹر نے کسی اور سے بات کیا انہوں نے کہا گورنر پنجاب کوشش کر رہا ہے ہم سے رابطہ کرنے کے لیے۔ سینٹ الیکشن میں کھلے عام دھاندلی ہوئی، چیئرمین سینٹ کو بچانے میں جہانگیر ترین اور گورنر پنجاب نے اہم کردار ادا کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا صادق سنجرانی سے مستعفی ہونے اور سینٹ الیکشن میں خفیہ رائے شماری ختم کرنے کا مطالبہ، کہا 14 سینیٹرز کی وجہ سے سب پر شک کیا جا رہا ہے۔ گندگی اور غلاظت میں اٹے کراچی کو صاف کرنے کا مشن، تحریک انصاف صبح سے شہر قائد میں صفائی مہم کا آغاز کرے گی۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے پلان بتا دیا، پہلے 10 دن میں نالوں کی صفائی ہوگی، صفائی کی نگرانی FWO کرے گا۔ کراچی میں منشیات سپلائی کرنے والا ایکسائز پولیس کا اہلکار گرفتار، ANF نے ملزم کی نشاندہی پر مزید 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ بھاری مقدار میں ہیروئن اور کوکین برآمد۔
बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। गहमा गहमी उरूज पर कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए खरीदारों का रश। किसी को बैल की तलाश, कोई बकरा ढूंढने में मसरूफ। व्यापारियों के नखरे भी बढ़ गए। फैसलाबाद में 1194 किलो वजनी बछड़े और 310 किलो बकरे की धूम। जानवरों की खूबसूरती और वजन के मुकाबले में मेला लूट लिया। माहे आज़ादी की खुशियां हर जानिब फैलने लगी। सब्ज रंग की बहार, गली महल्ले सजने लगे। स्टॉल्स पर कौमी परचम, बैजेस और झंडियों की फरोख्त। सानहे क्राइस्ट चर्च का शिकार अफराद के लवाहिकीन सऊदी अरब पहुंच गए। फरमा रवा शाह सलमान के हुक्म पर 200 अफराद को हज कराया जाएगा। तमाम अफराद खुसूसी शाही मेहमान होंगे। पीसीबी के क्रिकेट कमेटी कप्तान सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन, फ्रंट से लीड करने की हिदायत कर दी। हेड कोच मिकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर से। मावन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि भारत अमन की किसी कोशिश को नहीं मानता। अमन में सबसे बड़ी रुकावट मोदी सरकार का माइंड सेट है। आलमी बरादरी भारत की रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। भारत कश्मीर का मुकदमा हार चुका है। ये कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की जीत है। कश्मीरियों को उनका हक दिलाना मौजूदा हुकूमत का अज़्म है। हिंदुस्तान ने जिस रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए मासूम बच्चों पे, ख़वातीन और नहत्ते शहरियों पे क्लस्टर बम्स का हमला करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की है और ये साबित किया है कि हिंदुस्तान जो है वो अमन की किसी कोशिश को मानता नहीं है और अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मोदी सरकार का माइंडसेट है और हिंदुस्तानी क़यादत है। दुनिया ने देख लिया कि जो सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर होने का दावेदार है, उसने आरएसएस के ज़रिए किस तरह हिंदुस्तान के अंदर और मकबूजा कश्मीर के अंदर ऐसी इंसानियत सोज कार्रवाइयाँ करके हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी का जो माइंड सेट है उसको बेनकाब कर दिया। हिंदुस्तान की ये बुज़दिलाना कार्रवाई जो क्लस्टर बम्बिंग के ज़रिए गैर मुसल्लह शहरियों, बच्चों और ख़वातीन पे उसने बम बरसा के ये साबित किया कि वो जदोजहद कश्मीर की जो तहरीक है उसको नहीं कुचल सकता। पूरी कौम उसकी मजम्मत करती है और अपनी पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी है। इमरान खान साहब की ये सोच के जनूबी एशिया के अंदर अमन लाने के लिए सबसे ज़रूरी डायलॉग है और बगैर डायलॉग के कंसेंसस नहीं हो सकता। हिंदुस्तान आज उस मकबूजा कश्मीर में ना बैनुल-अक़वामी मीडिया को जाने की इजाज़त देता है, ना लोकल मीडिया वहाँ जा सकता है और ना वहाँ जो यूएन मौक़िफ़ जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर है उसको भी मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाज़त नहीं है। हिंदुस्तान कश्मीरियों के दिलों में अपना मुकदमा हार चुका है। इमरान खान साहब का सदर ट्रंप को सालसी के किरदार पे आमादा करना और फिर उसका बार बार उस ऐलान पे कायम रहना और उसको कम्युनिकेट करना, ये कश्मीरियों के बयानिए की जीत है, ये कश्मीरियों की जदोजहद की जीत है, ये कश्मीरियों की उन लाजवाल कुर्बानियों की जीत है और कश्मीरियों को उनका जायज़ हक़ खुद इरादियत दिलवाना मौजूदा हुकूमत का अज़म है। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ेर क़यादत कश्मीरियों के ज़ख्मों पे मरहम भी रखेंगे। पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी होके कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने में और इसको मंतकी अंजाम तक ले जाने में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़ी होके कश्मीरियों के इस जायज़ हक़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करती रहेगी।
पाकिस्तान दुनिया को भारत के करतूत दिखाएगा, बेनकाब करेगा। दुश्मन के मक्कार चेहरे को कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की जानिब से क्लस्टर बम गिराने के मामले पर दफ्तर खारजा में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और बरतानिया के सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी गई है। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने सफरा को सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ट्रंप के सालिसी के बयान के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है और कोई ड्रामा स्टेज करने की तलाश में है। आज न्यूज़ के प्रोग्राम राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मज़म्मती करारदाद पास करने का मुतालबा भी किया। लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तो वो कुछ अरसे से करता चला आ रहा था, लेकिन जो नया अंसर बीच में आया है वो है इस्तेमाल जो उन्होंने करना शुरू कर दिया है क्लस्टर एम्यूनेशन का। जी, ये बहुत खतरनाक चीज है और निहत्ते शहरियों पर, और ये क्लियर वायलेशन है, खिलाफ वर्जी है जिनीवा कन्वेंशंस की, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की खिलाफ वर्जी है। तो इस पर मुझे लगता है कि वो बौखलाहट का शिकार है, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तलाश में है, कोई ना कोई ड्रामा स्टेज करने की तलाश में है जिससे वो पाकिस्तान पर उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि सफार डिप्लोमेटिकली वो अपने आप को खासा इस वक्त वो दिक्कत में महसूस कर रही है। भारत दुनिया की नज़र कश्मीर में होने वाली दरिंदगी से हटाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया और पाकिस्तान पर उल्टा इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं इल्ज़ामात का मकसद मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान का LOC पर एक्शन का भारतीय इल्ज़ाम झूठ पर मबनी है। भारत का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान कुछ भारतीय लाशें ले आया है जो बेबुनियाद है। ये ड्रामे भारतीय प्रोपेगंडे का हिस्सा हैं। जंगी जुनून में मुब्तला मक्कार दुश्मन आपे से बाहर हो गया। सरहद पर पाक फौज का मुकाबला तो नहीं कर सकता, आम शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भारत ने आलमी कवानीन और जेनेवा कन्वेंशन की धज्जियां उड़ाते हुए वादी नीलम पर क्लस्टर ट्रॉय बम से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 4 साला बच्चे समेत 2 शहरी शहीद और 11 जख्मी हो गए। क्लस्टर बम आलमी कवानीन के तहत ममनू है। इस बम के हमले से भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया।